Hello everyone, hope you're all doing well. Uh, Welcome back to another video on financial management. Like in the last video, we have studied about basic theoretical concepts about different financial techniques like comparative statement, common size, trend, and ratio. So now today in this video, we'll be doing numericals on comparative statement, common size statement, and trend analysis, right? So I want you all to solve numerical with me because just viewing and taking a look won't help you, right? You have to solve with me. So keep your register and pen handy. Your calculators are important for calculations, right? If you don't have a calculator, keep it open in your phone, right? Because it's very important that you do calculations on your own, right? So let's begin. Now I'll be sharing my screen with you all. Okay, so let's begin with first illustration. It's about comparative statement. Okay, so it says that convert the following statement of profit and loss account into the comparative statement of profit and loss of BCR Company Limited. Now there are few information given to you for 2 years, 13-14 and 14-15, like revenue from operations, other incomes, expenses, and income tax. I'll be coming back on this slide for the figures, right? So this is the information given to you in a numerical, right? Now you have to proceed and prepare a comparative statement. Let me make it a slideshow. Okay, so this is how a comparative statement is made, with a heading written comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 2014 and 15. Now you have to draw a 5-column table, particulars 13, 14, 14, 15, and the last 2 columns are important that you have to calculate. That is absolute increase or decrease in 2 years and percentage of increase and decrease. Now let's begin. So first of all, what was given to us? You were given revenue from operations. So how this income statement goes? You from revenue you add all the incomes, then you deduct all the expenses. So you get profit before tax. And if tax is given to you, deduct tax and you get profit after tax. Okay, so let's begin one after the another. So first we have taken figures of revenue from operations of 13-14 and 14-15, 60 lakhs and 75 lakhs from the numerical. Now we have to find absolute increase or decrease. Increase हुआ है कि decrease हुआ है 13-14 से 14-15 में. So आपको करना क्या है? आपको minus करना है 75 lakhs minus 60 lakhs, right? तो 75 lakhs minus 60 lakhs आपको क्या मिला? 15 लाख इंक्रीज है. वाई इंक्रीज है? क्योंकि प्लस में जा रहा है. आपको हमेशा करंट ईयर से लास्ट ईयर का माइनस करना है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा आंसर प्लस में आया तो इंक्रीज है, माइनस में आया तो डिक्रीज है. तो ऑफकोर्स लॉजिकली दिख रहा है कि 13 में 60 लाख था और 14 में 75 लाख है, तो ऑफकोर्स 15 लाख का इंक्रीज है. मैं हिंदी में इसलिए पढ़ा रही हूँ बिकॉज फ्रॉम द लास्ट वीडियोज आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन माई यूट्यूब दैट प्लीज टीच इन हिंदी. तो आई विल बी मिक्सिंग बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. I'll try my level best to do it, right? So आपको ये समझ में आया कि फोर्थ कॉलम कैसे मिला. आपको 14-15 का फिगर 13-14 के फिगर से माइनस करना है. पॉजिटिव इसलिए आया कि इंक्रीज दिख रहा है, राइट? अब हाउ टू कैलकुलेट अ परसेंटेज मैंने ब्रैकेट में दिया है. जो 15 लाख आया है, जो एब्सोल्यूट इंक्रीज है, डिवाइडेड बाय बेस ईयर, दैट इज 13-14 वाला जो फिगर है उससे डिवाइड करना है इनटू 100. तो आपको क्या मिलेगा? 25 एज अ परसेंटेज. तो 25% बढ़ गया है. So percentage increase कितना है? 25%. Agree? So this is how you have to calculate. It is that simple for all the figures, right? Now the next we'll pick up is other incomes. Other income is 1,50,000 and 1,27,000 respectively. So you will add that in the revenue. क्योंकि आप revenue add करोगे, उसमें से माइनस करोगे एक्सपेंसेस, तो आपको प्रॉफिट मिलता है, राइट? सो रेवेन्यू ऐड किया तो आपको नीचे टोटल रेवेन्यू मिल गया 1 + 2 61. मैंने जो बोल्ड में लिखा है 61,50,000 76,20,000, वो सिर्फ दोनों को ऐड किया हुआ है 1 और 2 को. अब बात करते हैं फोर्थ कॉलम की. सेम वैसे ही करना है, माइनस करना है. सो कैसे माइनस करना है? 14-15 का फिगर 13-14 से. सो 1,20,000 माइनस 1,50,000 कितना आया कैलकुलेटर में आपके?
माइनस 30,000, है ना। माइनस आया इसलिए वो लिखा है ब्रैकेट में, क्योंकि वो क्या हो गया, इट इज एब्सोल्यूट डिक्रीज, डिक्रीज हो गया 30,000 से। अभी आपको क्या निकालना है, परसेंटेज। कैसे निकालोगे, 30,000 डिवाइडेड बाय 1,50,000 इंटू 100, कितना आया। You should calculate. I am waiting. I am telling you it very slowly, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कैलकुलेशंस खुद करें मेरे साथ। कितना आया, 20, राइट। इज दैट सिंपल। बस ऐसे ही करते जाना है। टोटल रेवेन्यू मिल गया, टोटल रेवेन्यू का भी डिफरेंस निकाला, कितना आया, 76,20,000 माइनस 61,50,000, कितना मिला, यस 14,70,000। इंक्रीज है, पॉजिटिव में आया आंसर। अब हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज, 14,70,000 डिवाइडेड बाय 61,50,000 इंटू 100, कितना मिला, 23.90, सिंपल। अब रेवेन्यू मिल गया। अब रेवेन्यू में से क्या करना है आपको, जितने भी आपको खर्चे दिए हुए एक्सपेंस दिए माइनस करना है। आपको एक एक्सपेंस दिया है 3 नंबर पे 44 लाख और 50,60,000, उसको माइनस कर दो, तो 61,50,000 माइनस 44 लाख कितना मिला, 17,50,000, सेम फॉर 14-15, ठीक है। अब वैसे ही एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालो, 50,60,000 माइनस 44 लाख करो, परसेंटेज निकालो, और 25,60,000 माइनस 17,50,000 करो, और 8,10,000 डिवाइड बाय 17,50,000 इंटू 100 का। तो आपने जब रेवेन्यू ऐड किया, उसमें से एक्सपेंसेस माइनस किया, तो आपको क्या मिला, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स माइनस करना बाकी है। ओके, ये टेबल आप ड्रॉ करो और टेबल के मेरे साथ आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है। I hope you all have reached till profit before tax. I'll wait for 10-20 seconds for you all to come to up where I am. So you should be with me, right? तो ज्यादा अच्छे से समझेगा आपको अगर आप मेरे साथ कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो, क्योंकि देखकर अकाउंट्स इज ऑलवेज अबाउट प्रैक्टिस, यू नो, इट्स नॉट अबाउट लुकिंग एंड गेटिंग इट। यू जब तक आप खुद अपना हाथ नहीं चलाओगे कुछ समझ में नहीं आएगा, एग्जाम में हाथ नहीं चलने वाला आपका, राइट। सो इफ डू इट ऑन योर ओन। और मेरे हर अकाउंट्स क्लास का एक मोटिव होता है, मोटो होता है, दैट मोटो इज प्रैक्टिस मेक्स अकाउंट्स परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट होगा। ओके, सो यू हैव रीच्ड टिल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इनकम टैक्स कितना दिया है, इनकम टैक्स 35% फॉर 13-14 एंड 40% फॉर 14-15। सो उतना ही निकालेंगे, 35% ऑफ 17,50,000 एंड 40% ऑफ 25,60,000 निकाला। वैसे ही टैक्स का डिफरेंस निकाला, परसेंटेज निकाला, माइनस किया प्रॉफिट बिफोर टैक्स और टैक्स को माइनस किया, तो क्या मिल गया आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया, ठीक है। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का वैसे ही डिफरेंस निकाला, 15,36,000 माइनस 11,37,500, कितना मिला, 3,98,500। और उसका परसेंटेज कैसे निकाला, 3,98,500 डिवाइडेड बाय बेस ईयर 13-14, 11,37,500 into 100, 35.03. I hope you all are doing with me. Okay, so मेरे साथ आप कर रहे हो तो ही आपको समझ में आएगा। मैं बहुत स्लो जा रही हूँ ताकि आप लोग मेरे साथ सॉल्व कर सको, है ना, इट्स इम्पोर्टेंट। ओके, दैट्स इट, न्यूमेरिकल इज डन, इतना ही है, ठीक है, सिंपल। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दूसरा इलस्ट्रेशन, ठीक है। What it says that from the following statement of profit and loss of ABC Company Limited, prepare a comparative statement of profit and loss for the year ended 31st March 14 and 31st March 15. Okay, year ended बोला है, मतलब 13-14 and 14-15। यहाँ भी हमको सेम इन्फॉर्मेशन दी है, रेवेन्यू दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस दिया है, अदर एक्सपेंसेस दिया है, इनकम टैक्स दिया है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमको और कोई इनकम नहीं दिया है, तो हमको सिंपल जाना है, वही टेबल बनाना है, सेम टेबल ड्रॉ करेंगे फटाफट 5 कॉलम्स का। ये आप अपने आप खुद कर सकते हैं क्योंकि इट्स वेरी सिंपल।
आपको सिर्फ रेवेन्यू लिखना है, उसमें से आपको सारे जितने भी इनकम अगर दिया है तो ऐड करना है। तो ये न्यूमेरिकल में इनकम तो कोई है नहीं रेवेन्यू के अलावा, तो एक्सपेंसेस दो टाइप के दिया है, दोनों टाइप के एक्सपेंसेस माइनस कर लो, ठीक है। एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज निकालो, परसेंटेज निकालो। अभी जो थर्ड वाला है वो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, 2 लाख और 1 लाख, क्योंकि वो माइनस में आ रहा है, बिकॉज 1 लाख माइनस 2 लाख इज माइनस 1 लाख। तो अगर उसका एब्सोल्यूट डिक्रीज है तो ऑफ कोर्स परसेंटेज भी उसका हमने ब्रैकेट में डाला है, इट विल बी 1 लाख डिवाइड बाय 2 लाख इनटू 100, ठीक है। फिर क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। टैक्स 40% सबके लिए कॉमन दिया हुआ है, तो 40% ऑफ 6 lakhs, 40% ऑफ 9 लाख, उसको माइनस करना है तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। तो आपकी जो दो कॉलम्स है, फोर्थ और फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस हेल्प्स यू टू एनालाइज कि कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है आपके प्रॉफिट में, और फ्यूचर का क्या सीन है। तो दिस कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स हेल्प यू टू कंपेयर योर प्रीवियस ईयर्स। सो कितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं या हम पीछे जा रहे हैं, परसेंटेज इंक्रीज है या परसेंटेज डिक्रीज है। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल about comparative statement. Simple? Okay. These are very simple statements. These numericals are very simple. कोई भी कर लेगा, इसमें कोई अकाउंट्स के बेसिक नॉलेज का जरूरत नहीं है, राइट। यू कैन डू इट, दे आर सिंपल कैलकुलेटर कैलकुलेशंस। माइनस करना है, परसेंटेज निकालना है, माइनस करना है, परसेंटेज निकालना है, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ सकते हैं हम। सॉल्व किया आप लोगों ने, ओके। So now we'll start with common size statement. Study karte, right? So from the following information, prepare a common size income statement for the year ended 31st March 14 and 15. Again, let's find out. We are given figures of 13, 14 and 14, 15. देखना 13, 14 का इस तरफ दिया है, 14, 15 का इस तरफ दिया है। कभी कभी ट्रिकी होता है, आप लोग क्या करोगे एग्जाम में, बोलोगे अरे पहला वाला 13, 14 का ही रहेगा, दूसरा 14, 15 का रहेगा। सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस है। आई एम पॉइंटिंग यू आउट, सो रीड योर क्वेश्चन वेरी प्रॉपरली एंड क्लियरली, दे माइट ट्रिक यू। So 14, 15 figures are given first and then 13, 14 figures are given. What are we given here? Net sales, cost of goods sold, operating expenses, non-operating expenses, depreciation and wages are given to us. We are asked to prepare a common size statement. Now, how does a common size statement looks like? Now, here you have to find out absolute amounts and percentage of net sales. You have to calculate here in common size statement percentage to net sales of each and everything, right? Let's move on. So आपको फिर से इसमें 5 columns draw करना है. So particulars, absolute amounts and percentage of net sales. So let's move on. So net sales is given to us as 25 lakhs and 18 lakhs. तो हमें न्यूमेरिकल में 13, 14 पहले लिया है, 14, 15 बाद में लिया है, ठीक है। Now you have to calculate its percentage. यहाँ सिर्फ आपको डिफरेंस ही निकालना है, यहाँ आपको सिर्फ परसेंटेज निकालना है with the base year. With the base year sales, 25 lakhs will be base sales for 13, 14 year and 18 lakhs will be base sales for 14, 15 year for every figure, right? इसलिए पहला जो 13, 14 और 14, 15 का जो परसेंटेज आया वो 100 आया है। क्यों? 25 lakhs divided 25 lakhs into 100 will be 100. 18 lakhs divided by 18 lakhs into 100 will be 100. खुद से को डिवाइड करना है ना, क्योंकि सेल्स ही लेना है, सेल्स से ही परसेंटेज निकालना है हर एक चीज का, राइट, हर एक आइटम का। सो पहला सेल्स क्लियर हो गया। नाउ लेट्स कम टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इट्स अ फॉर्मूला, हाँ ये रेशियो में काम आएगा आपको। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? सेल्स माइनस जीपी. So vice versa. So net sales minus cost of goods sold will give you gross profit, right? So what is cost of goods sold given to you? It is 12 lakhs for 13, 14 and 10 lakhs for 14, 15. वही कॉपी पेस्ट किया और इसका परसेंटेज निकाला टू बेस सेल्स, मतलब 12 lakhs डिवाइडेड बाय 25 lakhs into 100. मैंने आपके लिए वर्किंग नोट किया है ब्रैकेट में। और वैसे ही 14, 15 का कैसे निकालोगे? 10 lakhs डिवाइड बाय 18 lakhs into 100. मतलब हर बार आपको डिवाइड किससे करना है? बेस सेल से ही डिवाइड करना है उसको, राइट? ये डिफरेंस है, ओके, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। सो हमेशा डिफरेंस याद। कंपैरेटिव ने हमने क्या किया था? उसके उसी फिगर से डिवाइड किया था, बट उसके
लास्ट ईयर वाले फिगर से डिवाइड किया था 13-14 केस से, बट इस बार हम लोग उससे डिवाइड नहीं कर रहे हैं, हम लोग डिवाइड कर रहे हैं हर बार सेल्स से, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग परसेंटेज टू नेट सेल्स एवरी टाइम. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, याद रखना. ठीक है. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आया? 25 lakhs माइनस 12 lakhs 13 lakhs माइनस किया, 18 lakhs माइनस 10 lakhs 8 lakhs आपका जीपी आया. वैसे ही परसेंटेज निकाला आपने नेट सेल से. कैसे निकाला? 13 lakhs डिवाइडेड बाय 25 lakhs into 100. मैं 13-14 की बात कर रही हूँ. और 14-15 में 8 lakhs डिवाइडेड बाय 18 lakhs into 100 आया 44.44. ऐसे ही करते जाना है. अब ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आपने सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, है ना, तो ऑपरेटिंग आपको दिया हुआ है ऑपरेटिंग एक्सपेंस 80 लाख और 1,20,000. सो 1,20,000 13-14 का है, 80 लाख आपका 14-15 का है. ये कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पता है हम लोग सिंपल यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करते हैं ना हम लोग फाइनल अकाउंट्स में, उसी का हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट कर रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं बस. वहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ मिलता है आपको? ट्रेडिंग अकाउंट में. नेट प्रॉफिट कहाँ मिलता है आपको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट में रहते हो तो सेल्स और सारे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो भी है उसको अगर आप माइनस करते हो तो जीपी मिलता है, और जीपी में आप सारे एक्सपेंसेस माइनस करते हो ऑपरेटिंग वाले, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो प्रॉफिट एंड लॉस के होते हैं, और इनकम सारे ऐड करते हो तो क्या मिलता है आपको? प्रॉफिट मिलता है. राइट वही करना है यहाँ पे, वही किया है. अभी आपने जीपी निकाल लिया, जीपी मिल गया डिफरेंस. ठीक है. अब आपको माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, दिए हुए हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, उसको माइनस किया. नीचे आपको सारे ऑपरेटिंग इनकम मिल गए. ठीक है. उसमें से माइनस किया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15 lakhs एंड 12 lakhs. तो आपको क्या मिल गया? आपको प्रॉफिट मिल गया. ये आपने माइनस करके निकाल लिया, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में आपने क्या करते गए? आप परसेंटेज निकालते गए सेल्स से. मतलब हर बार आपने क्या किया? डिवाइड बाय बेस सेल से करते गए. मतलब जब आप प्रॉफिट पे आए, लास्ट फिगर ले लो, 11,65,000 डिवाइडेड बाय 25 lakhs into 100, 7,08,000 डिवाइडेड बाय 18 lakh into 100. हर बार आप डिवाइड बाय उसके बेस सेल से करते गए और परसेंटेज निकालते गए. इट इज दैट सिंपल. Now what is that star I have given here? आप बोलोगे आपने तो यूज ही नहीं किया wages और depreciation. Why I have not used it? Because wages is a part of already a cost of goods sold, क्योंकि वो trading account में आता है, and depreciation is a part of operating expenses क्योंकि वो P&L में आता है. So इसको अलग से ही हमने माइनस नहीं किया एक्सपेक्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसमें, इसलिए वहां पे स्टार देके आपको बताया. सिंपल, बहुत सिंपल है. राइट ये आपका हो गया कॉमन साइज स्टेटमेंट. लेट्स डू वन मोर न्यूमेरिकल ऑन कॉमन साइज स्टेटमेंट for your understanding. Try to do this on your own. Okay. So from the look, if I'm going fast, you can always rewind and watch my video. It is on YouTube, so it's not like कि class हो गया, सब खत्म हो गया, now you can't see again. So the plus point of putting videos on YouTube is that you can, as many times you can watch them, you can rewind them, you can pause them. So even if I am going fast, you can pause and do calculations, right? So you have control in your hands. Okay. But still I'm trying to go slow to my level best. Okay. So this numerical says that from the following information prepare common size statement again. So let's see what is given to us. We are given revenue from operations, we are given other income, we are given expenses, two types of expenses, and we are given income tax. जो information दी है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना होता है, ये ध्यान में रखो. So ये आपका बन गया वही 5 कॉलम, particulars, absolute amounts of 2 years and percentage to net sales of 2 years. आपने revenue from operations लिया, उसमें जो भी आपको रेवेन्यू दिए थे, वो इनकम दिया था, वो ऐड कर लिया. आपको इनकम दिया था 3,25,000 और 2,50,000. दो टाइप के इनकम है, तो आपने स्टार्ट किससे किया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 25 lakhs प्लस अदर इनकम 3,25,000. वैसे ही आपने 14-15 के लिए किया 20 lakhs प्लस 2,50,000. देख रहे हैं? उसके बाद आपको टोटल रेवेन्यू में से आपको एक्सपेंसेस सारे माइनस करना है. आपने ऐड कर लिया, आपने 25 लाख प्लस 3,25,000 ऐड किया, तो आपको टोटल रेवेन्यू मिल गया 28,25,000. आपने 20 लाख प्लस 2,50,000 किया, आपको टोटल रेवेन्यू मिल गया 22,50,000. और आप फोर्थ और फिफ्थ कॉलम में साइमल्टेनियसली परसेंटेज निकालते गए टू नेट सेल्स. अब आपको आइडिया आ गई कैसे किया है. 25 lakhs डिवाइड बाय 25 lakhs into 100 क्या मिला? 100. 20 lakhs
डिवाइड बाय 20 lakhs into 100. अब जब आप इसमें आ गए अदर इनकम में, तो कैसे हुआ? 3,25,000 डिवाइडेड बाय 25 lakhs into 100. इधर कैसा हुआ? 2,50,000 डिवाइड बाय 20 lakhs into 100. मतलब उसी साल के सेल से आप डिवाइड करते गए, into 100 करते गए, परसेंटेज निकालते गए, नेट सेल्स को बेस लेते हुए. क्लियर? अपने सारे एक्सपेंसेस माइनस किए, आपको दो टाइप के एक्सपेंस दिए हुए हैं. आपको क्या मिला? प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिला. आपने टैक्स माइनस किया, आपको क्या मिला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. ये आपने कैलकुलेशंस करते गए, यहाँ पे आपको परसेंटेज आप निकालते गए सेल्स से. योर कॉमन साइज स्टेटमेंट इज रेडी. सिंपल, वेरी सिंपल, राइट? सिंपल कैलकुलेशंस. ठीक है? सो आप लोग यहाँ पॉज करके, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन कर लेना. आई एम मूविंग अहेड. ओके, now let's look for trend analysis, the last type of numerical. Now trend, इसका formula क्या है trend analysis का? Now look, 1 year is taken as the base year for trend analysis. Generally the first year is taken as the base year. Now the figure of base year is taken as 100. The trend percentage are calculated in relation to this base year now. So if a figure in other year is less than the figure in base year, the trend percentage will be less than 100 and it will be more than 100 if figure is more than the base year figure. So each year's figure is divided by the base year figure. Understand? So what is the formula in simple? If you have not understood what I have said, forget it. Just remember the formula. Trend percentage is equal to present year value divided by base year value into 100. So the accounting procedures or conventions used for collecting data and preparation of financial statements should be similar. Otherwise, the figures will not be comparable, right? So let's see how this numerical goes of trend analysis. That we have to calculate trend, right? So trend is calculated for past many years, 3, 4, 5 years. That you can find a trend. What is the trend of sales? What is the trend of profit going on in the company? So the numerical says that calculate the trend percentages from the following figures of sales, stock and profit, taking 2010 as the base year and interpret them, right? So numerical is given to here. We are given figures of 10 years, 10, 11, 12, sorry, 5 years, 10, 11, 12, 13, 14. We are given the figures in lakhs. Let's see how it is done. Now this is how your numerical looks like. Year, sales, its trend, stock, its trend, profit, its trend percentage, right? Very simple. Again, only we have to calculate percentage taking the sales as a base year here. Same like common size statement, right? So let's begin. So you just copy the years, copy sales figure, copy stock figure, and copy the profit figures, right? Just have to calculate trend of each. So let's first let's see only sales. So in 10, sales was 1881. So it will be 1881 divided by 181 into 100. You are understanding? So this is how it goes. Now for stock, for profit. So you have to take 2010 as a base year. When you talk about stock, the stock will be the base year for this. That means 709 will be the base. And in case of profit, 321 will be the base. So we are taking here 2010 as a base year. Okay. So now we move ahead to 2011. So we are given 2340 as our sales, right? So we are taking 2010 as a base year. So 2340 divided by 1881 into 100. Why that? Because it is told in the numerical that take 2010 as a base year. So 2010 का figure हर बार base बनेगा, उसी से divide करना है हर बार, ठीक है? When you come to the stock of 2011, it is 781. What is the base of stock 2010 का? So 781 divided by 709 into 100. Same for profit, 435 divided by 321 into 100. So 10 का figure हमेशा base लेना है, उससे से divide करना है, and ऐसे करते जाना है. Simple. So 2655 divided by 1881 into 100. For stock of 2012, 816 divided by 709 into 100. For profit of 12, 458 divided by 321 into 100. And so on. अब मैंने 13 और 14 का नहीं किया वहां पे बाकी नोट, बट आप कर सकते हो. कैसे करोगे? 3021 divided by 1881 into 100, 944 divided by 709 into 100, 527 divided by 321 into 100. Understood? For 14 कैसे करोगे?
3768 divided by 1881 into 100. For stock, 1154 divided by 709 into 100. For profit, 627 divided by 321 into 100. सिंपल. ट्रेंड मिल गया आपको. कैसे ट्रेंड मिला, आप उसको अभी आपको इंटरप्रेट करना है. सो हाउ वुड यू इंटरप्रेट अ ट्रेंड? आप अब ये फिगर, आप ये टेबल आपके सामने है, आप देखते जाओ. The sales have continuously increased in all the years. Can you see? It has percentage देखो 100, 124, 141, 161, 200. The percentage is rising. So we can see a trend that though in different proportions, the percentage in 14 is 100 as compared to 100 in 2010, right? So the increase in sales is quite satisfactory. This is how we interpret. The figures of stock have also increased over the year. When I say stock, you should see trend of stock. Huh? Just watch, keep your eyes on that. So the figures of stock have also increased over a period of 5 years. The increase in stock is more in 13 and 14 as compared to earlier years. This is how you should interpret. And the last, see, the profit has substantially increased, and the profit have increased in greater proportions than sales, which implies that a company has been able to reduce their cost of goods sold and control the operating expenses. So in comparison to sales, profit is rising in a greater proportion. So this is how you interpret your trends, right? That's all. So this is all about the numericals on comparative statement, common size and trend. ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, नथिंग न्यू. सो आपको मैंने आइडिया दे दी है, इनको प्रैक्टिस करो. आपके पास बुक होगी, वो बुक में से और भी प्रैक्टिस करो. कुछ डाउट रहा तो आई एम हियर अवेलेबल. We can talk about it, right? So this is all about today's lecture. See you all in the next lecture.